Oh, okay, guys. So, welcome to this session. So, we will solve here some remaining questions of mode of energy transfer, that is work. So, let's try to focus on this question. यहाँ पे क्या कह रहा है? When the valve of the evacuated bottle as shown in the figure is opened, okay, it is evacuated, that is there is no air molecule, there is no air molecule, gas molecule is opened, atmospheric air rushes into it. If the atmospheric pressure is this much, let's write here. So P1 is 101.325 kilopascal and 0.6 meter cube of air measured as atmospheric condition enters into the bottle. Okay, so volume enters into the bottle. Okay, so volume will be what? 0.6 meter cube enters into the bottle. The work done by the air is अच्छा यार, यहाँ पे देखना एक की कंसेप्ट है. वर्क डन बाय द एयर पूछ रहा है यहाँ पे. इफ़ आई टेक द सराउंडिंग एयर एज अ सिस्टम, तो क्या मैं इसको इस तरीके से कुछ दिखा सकता हूँ क्या? दिस इज़ सराउंडिंग एयर. जस्ट इसका मैं एक व्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ओके, और यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक इज़ एक्टिंग. दिस इज़ व्हाट? P एटमॉस्फेरिक. अच्छा, और यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज़ हाउ मच 0.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर. ये अंदर जा रही है, इसके अंदर. किसके अंदर? दिस कंटेनर, इवैक्यूएटेड बॉटल के अंदर, राइट. सो इट विल बी व्हाट? डेल्टा वी वैल्यू विल बी 0.6 मीटर क्यूब. So we can write it delta V. Delta V is what? Volume of air which enters into the evacuated bottle. ओके, तो अगर यार इसको मैं क्लोज सिस्टम लूँ, ये अपना क्लोज सिस्टम ही है. सो व्हाट वी विल राइट? डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू, मुझे पता था इट इज़ व्हाट? इंटीग्रल पी डी वी. और यहाँ पे पी क्या होता है यार? पी इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द सिस्टम. सो यहाँ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी एटमॉस्फेरिक. और डेल्टा वी डी वी विल बिकम डी वी. तो जस्ट कैलकुलेट द आंसर. So it will be how much? 101.325 into delta V 0.6 meter cube. So it is in kPa, it is in meter cube. So directly we will get 60.8 kilojoule, right? So now okay, so this is what? This is work done by the external air on this. Work done by external air on this evacuated bottle. Okay, this is the work done by air. The work done by air is what? Del W equals to 60.8. अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि इफ़ वी कंसीडर दिस थिंग, अगर मैं इसको एज अ सिस्टम लूँगा, सो हियर व्हाट वी विल गेट? द वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा. सो इट विल बी नेगेटिव इफ़ आई टेक इनसाइड एज आवर सिस्टम. सो वर्क डन जस्ट अपोजिट हो जाएगा यार. यहाँ पे वर्क डन विल बी व्हाट? ऑन द सिस्टम. अगर मैं इनसाइड को मैं अपना कंट्रोल मास ले रहा हूँ, यहाँ पे इसकी बाउंड्री शिफ्ट होगी. सो इट विल बी व्हाट? वर्क डन ऑन द सिस्टम. सो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी. सो हियर वी आर टेकिंग वर्क डन बाय दिस सिस्टम एयर. सो इट विल बी व्हाट? पॉजिटिव, राइट. सो आंसर इज दिस वन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, a pedal wheel as shown in the figure. Okay,
सो यार फिगर देख के पहले आप ये समझो कि अपना सिस्टम क्या है. अपना सिस्टम इज़ दिस. This is our system. Okay, a paddle wheel as shown in the figure requires a torque of 25 Newton meter. So just write here T equals to how much. जैसे जैसे आपको वैल्यूज़ मिलती जाएं, सिंपल आपको लिखते जाना है. एट आरपीएम ऑफ एन की वैल्यू 100 आरपीएम. If it rotates for 20 seconds, t की value is 20 second. The net work done by the air if the frictionless 20 kg piston, okay, 20 kg piston, m की वैल्यू कितनी है यार, 20 kg of piston raised by, so this is how much, delta x. So delta x will be 1 meter during this time. Okay, the net work done by the air, if the frictionless इतना kg piston raised by 1 meter during this process. Okay, simple. ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, अगर मैं देखूँगा अपना दिस इज़ माई क्लोज सिस्टम, राइट. इसके ऊपर यहाँ से वर्क डन हो रहा है एंड ये सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो रहा है, करेक्ट. सो दिस इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय दिस स्टीरर. So if I write work done total will be how much, work done by stirrer plus work done by the system, work done by the system, और work done by the gas लिख देता हूँ मैं इसको, work done by the gas in raising the piston. Okay, so here we have two work done. So let's try to calculate work done by this stirrer which is attached here. Okay, so let's do this partition. So this is one relation. So we want to calculate work done by this stirrer. Okay, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, stirrer का टॉर्क दे रखा है, n दे रखा है, टाइम दे रखा है. Okay guys, we know that power equals to t omega. T omega, and it is what, t into 2 pi n by 60. Okay, and this will be how much work done by time. Okay, so अपने पास क्या क्या दिया है, टॉर्क दिया है अपने पास, 2 pi is constant, it is given n. ओके, टाइम की वैल्यू दिया है, टाइम विल बी इन सेकेंड, वर्क विल बी इन किलो जूल, टाइम विल बी इन सेकेंड, टॉर्क विल बी इन न्यूटन. ओके, सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज़. ओके, सो इट विल बी व्हाट, W इक्वल्स टू टॉर्क 25 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू n की वैल्यू कितनी है यार, 1000 and 100 upon 60 गुड़े टाइम की वैल्यू 20 सेकेंड. ओके, सो यहाँ पे देखिए टॉर्क की वैल्यू न्यूटन मीटर में है. आप पूरा इसको सॉल्व करोगे देन आंसर इट विल कम इन किलो जूल, इट विल कम 5.23 किलो जूल. ओके, सो दिस विल बी व्हाट, WS. अच्छा ये बताओ, दिस स्टीरर वर्क, ये सिस्टम पे वर्क कर रहा है, इट इज़ ऑन द सिस्टम. ओके, सो कैन वी टेक निगेटिव साइन हियर. आई होप यहाँ तक क्लियर है. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द गैस. अच्छा, अगर ये इस सिस्टम में गैस है एंड दिस गैस हैज़ प्रेशर P, it is applying, so what will be the work done by the gas?
what will be the work done by the gas. तो I think हमें पता है it becomes integral PdV. Okay, so it becomes what? PdV, integral PdV. So this is our main concept. Okay, so how we will calculate the pressure? We have to know the pressure value, because dV will be ADX. Area is given. Okay, delta x unit is given. Okay, let's see. So if we take the piston and we just draw the FBD of the piston, as we have already discussed, PA नीचे से एक्ट करेगा और ऊपर से क्या एक्ट करेगा यार, P atmospheric into area and plus weight of this will be downward W. So from here can we write that PA equals to PA equals to P ATM into A plus W. P ATM into A plus W. So let's see हमें क्या क्या दिया है. P एरिया की वैल्यू कितनी है? Is it given? Diameter. Okay, it is given here. Diameter is 15 centimeter. So we have to keep it in meter cube. So it will be what? Pi. It will be what? Pi d square 0.15 upon 4 equals to P atmospheric pressure. So it is given 101.325 kilopascal. This is in kilopascal, multiply by area pi by 4 into 10 pi by 4 into 0.15 square, and okay, plus weight कितना है यार इसका? 20 into 9.81. Guys, check here unit, because I have taken here as a kilopascal. Okay, so final, after doing calculation, you will get the pressure value. As 112.42 kilopascal. Okay, 112 kilopascal. Okay, so now the work done by the gas will be how much? PdV. So we know the P and we know the V, delta V. P will be how much? 112.42. delta V कितना हो जाएगा यार? A into how much? delta x 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे. ओके, सो इट comes out as 1.98 kilojoule. So it will be what? Work done by the gas, so it will be positive. So total work, if I write W net, it will be the summation of this WS, W stirrer plus W what? Gas. So अब नीचे जाना भाई. It will be minus 5.23 plus 1.98 kilojoule. So just calculate it, we will get minus 3.25 kilojoule. So this will be the final answer, guys. So W net will be how much? minus 3.25 kilojoule. So this will be the net work done on the system. So this is the very simple concept which we have used multiple time for force balance. So हमें क्या करना था यहाँ पे? जस्ट मेरा सिस्टम, मैंने सिस्टम आइडेंटिफाई किया. सिस्टम पे दो प्रकार के वर्क डन हो रहे थे. एक स्टीरर का, दिस वाज वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड वन वाज द वर्क डन बाय द क्लोज सिस्टम. So thus we have added the work done by both
this is the work done on the system, work done by the system. Just calculate the value of W from here and find the value of pressure. This is the very important and crucial step. We have to find the value of pressure from here, then just do PdV. Okay, so this is fine. So, and this will be what constant pressure process. It will be what constant pressure process, because at each point that pressure, that force will be balanced on this piston, so it will move with constant pressure. Okay, so this is, I think, clear. Now move to next question. ओके ये सिंपल है आई थिंक. ओके, जस्ट वर्डन निकालना है. अ गैसियस सिस्टम ऑफ वॉल्यूम V contains a mass m of a gas at pressure P and temperature. This is real gas equation. The macroscopic property of a system obey the following relationship where A, B are the constants. Okay, obtain the expression for displacement work. डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या मतलब हुआ, W इक्वल्स टू PdV हमें निकालना है. Work done by the system during a constant temperature expansion from volume V1 to volume V2. Calculate the work done by the system which contains 10 kg of this gas expanding from ये to ये temperature this. Use the values A की value, B की value and R की value. Okay, so यहाँ पे it is given the real gas equation. So just write it here. So it is asking what displacement work done by the system during the process. So we want to calculate delta W equals to integral P dV. Okay, so it asking that displacement work. अच्छा, अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका क्या मतलब है यार कि सिस्टम इज़ क्लोज्ड एंड प्लस सिस्टम इज़ क्वासी स्टैटिक. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस. तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. सो लेट्स ट्राई टू राइट हियर. सो इफ इट इज़ P प्लस A by V square into V minus B upon mRT. ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इक्वल्स टू mRT अपॉन V माइनस B, एंड देन प्रेशर विल बी हाउ मच, प्रेशर विल बी mRT V minus B minus of A upon V square. So this is the relation between pressure and volume. Okay, so now we have to do only integration part. So del W equals to integral P dV. और P की वैल्यू कितनी है यार, इट इज़ mRT अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन V स्क्वायर into dV. Volume will go from V1 to V2. This is the simple integration, guys. Just you have to calculate here. Okay, so we will write mRT ln V minus B. So यहाँ पे ये आ जाएगा. Then we will do what, V2 minus V1. Okay, and this will be what, A 1 by V2 minus 1 by V1. Okay, so this will be what, total work done. अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा है m की वैल्यू. टेक m वैल्यू एज 10. ओके, V1 वैल्यू टेक 1 मीटर क्यूब. V2 वैल्यू इज़ 10 मीटर क्यूब. At a temperature of 293, take T value 293 Kelvin. Use the values A, B, C. A is how much, 15.7 into 10 की power 4 Newton meter power 4. B is how much, 1.07 into 10 की power minus 2 meter cube. Okay, R is how much, 0.287
किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। सो गाइज जस्ट यू हैव टू पुट all these values here, put all these values here and do the calculation very precisely, and from here we will get its final answer at 1803.11 kg. So you have to do this calculation guys. So this is our standard formula for work done for this ideal gas. Okay, अच्छा यार इन सब क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हमें वी हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रल w इक्वल्स टू इंटीग्रल p dv. वी हैव टू जस्ट मेक अ फंक्शन ऑफ p, वी हैव टू अरेंज p एज ए फंक्शन ऑफ fv, ठीक है, और बस उसको यहाँ पे उठा के हम लोग रख देते हैं, देन वी विल परफॉर्म इंटीग्रेशन, अपना आंसर आ जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था जहाँ पे p वाज प्रोपोर्शनल टू d क्यूब, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी है। ओके, आई होप यू विल कैलकुलेट दिस आंसर गाइस, प्लीज़ इसका कैलकुलेशन कर लो आप लोग आराम से। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ वाओ, ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मीटर क्यूब। ओके, जस्ट सिंपल हमें लिखना है V1 इज़ 0.1 मीटर क्यूब at P1 equals to 3 bar to a final volume V2 equals to 0.3 meter cube and pressure is how much? 1 bar. Pressure and volume are related linearly during the process, determine the work done. Okay, ठीक है, fine. Pressure और volume का relation linearly है, right? So let's draw this on PV curve. Okay, तो इनिशियल वॉल्यूम इधर है। ओके, लेट्स टेक दिस V1। अच्छा, V1 से V2 में वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, मींस हम क्या इधर जा सकते हैं क्या? V1 से V2 में वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, क्या हम इधर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि इधर तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, तो इधर नहीं जाएंगे यार। ओके, तो मैं क्या इधर जा सकता हूँ क्या? यस, आई कैन गो हियर। अच्छा, मुझे किधर जाना है? मैं इधर जाऊँ, इधर जा सकता हूँ, तो लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ये हो सकता है ऐसे वेरी करे, है ना। बट देखो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग हियर, राइट, प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग हियर। ओके, सो ऐसा होना चाहिए कि हमें प्रेशर डिक्रीज़ भी करना है और राइट में जाना है, ये कैसे जाएगा? इट विल मूव लाइक दिस। ओके, सो दिस विल बी स्टेट 1, दिस विल बी स्टेट 2। ओके, सो इसको थोड़ा मुझे अच्छे से ड्रॉ करने दीजिए। दिस इज PV, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज P1, दिस इज P2। अच्छा, ये हमें क्या क्या दिया है? लेट्स सी, हमें P1 दिया है। अच्छा, ये लीनियर है। सी, प्रेशर एंड वॉल्यूम और लीनियरली, प्रेशर एंड वॉल्यूम और लीनियरली रिलेटेड लीनियरली, तो ये इसीलिए मैंने इसको लीनियरली ड्रॉ किया है। ओके, सो वी हैव गिवन P1, V1, V2, P2 एंड ड्यू टू डिटरमाइन द वर्क डन। सो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा गाइज? वर्क डन विल बी व्हाट? एरिया अंडर दिस कर्व। वर्क डन विल बी व्हाट? एरिया अंडर दिस कर्व। So this is 1, this is 2, this is 1, this is 2. So W12 will be what? Area under this curve, area under curve. तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, जस्ट एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया इट विल बी व्हाट? P2 V2 माइनस V1 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया इट विल बी हाउ मच? हाफ P1 minus P2 into P1 minus P2 into what? V2 minus V1. So just do this calculation, and I think we have done this question in the class also. We get 40 kg answer, 40 kilojoule answer. ओके गाइज, यहाँ पे ध्यान रखना, बार को अपन को किलो पास्कल में चेंज करना है, राइट। 1 बार इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल
and equals to what? 100 kilopascal. So you have to keep pressure in kilopascal, keep always pressure in kilopascal and volume in meter cube. What we will get answer in kilojoule. ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. Now next move to the next question. One mole of an ideal gas. 1 mole of ideal gas. Okay, let's write here. Let's write n की वैल्यू 1 मोल एट 0.5 मेगा पास्कल. P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? 0.5 मेगा पास्कल एंड 300 केल्विन. T1 is how much? 300 Kelvin. 300 Kelvin is heated at constant pressure. Is heated at constant pressure. अच्छा, दिमाग में बनाना है ये फिगर PV और ये क्या कर रहा है? हीटिंग हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम लोग इधर बनाएंगे, है ना. हीटिंग हो रही है तो हम लोग इधर बनाएंगे. दिस विल बी व्हाट? आइसोबेरिक हीट एडिशन टिल द वॉल्यूम इज़ डबल्ड. ओके गुड. तो यहाँ पे V0 और यहाँ पे 2V0 एंड देन अलाउड टू एक्सपैंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टिल द वॉल्यूम इज़ डबल्ड. ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अब एक्सपेंशन हो रहा है इसका. अलाउड टू एक्सपैंड मीन्स एक्सपैंड करेगा, तो ये इधर जाएगा या इधर आएगा. ओके, एक्सपेंशन के लिए क्या किधर जाएगा? क्या इधर जाएगा? क्या इधर नहीं जाएगा यार, इधर तो कंप्रेशन होगा. It will move like this side. It will expand at a constant temperature till the volume is doubled. So it will move up to here. So volume will be how much? 4V0. 4V0. Volume is double. Again, sketch the process on PV diagram. Also determine the net work done. Okay. So I think दिमाग में ये रखिएगा. Now let's draw it very neat and clean sketch for this curve. I think ये अपना सही है. So how it will look like, how this process will look like. This is P, this is V और पहले कांस्टेंट प्रेशर पे चलेगा. ओके, सो फ्लोर 1 2 and then isothermal, then this is isobaric heat addition, then 2 to 3 it will be what? Isothermal expansion. This will be what? V0. This is 2V0 and this is what? 4V0. okay, सारे डेटा लिख लिया है अपन ने. And so the total what it is asking work total. It will be work total will be 1 से 2 प्लस वर्क 2 से 3, है ना. सो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा यार? यहाँ पे एरिया अंडर दिस कर्व और प्लस एरिया अंडर दिस कर्व, राइट. सो W12 कैसे रहेगा? दिस इज आइसोबेरिक, सो वी कैन राइट दिस आइसोबेरिक, सो वी कैन राइट P1 is given P1 2V0 minus V0 P V2 minus V1 and W23 क्या हो जाएगा यार? दिस इज़ वॉट? अच्छा, यहाँ पे n के टर्म में दिया है, सो वी विल राइट PV इक्वल्स टू nRT, राइट. सो यहाँ पे W23 विल बी वॉट? P2V2 इंटू ln P2 बाई P3. तो हम क्या लिखते हैं? P1V1 इंटू ln P1 बाई P2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P2V2 इंटू ln P2 by P3. So let's try to calculate this first. So W12 will be how much? P1 की वैल्यू है 0.5 मेगा पास्कल
okay, so it will be what, P1 into V1, right? So it will be what, P1 into V0, दिस विल बी W12 P1 इंटू V0। अच्छा यार, मैं अगर इस स्टेज पे है, दिस इज़ आइडियल गैस फॉर 1 मोल, तो यार मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ क्या, N R bar T, so here N value is 1 mole, R value will be what, 8.314 into kilojoule per kilomole into Kelvin, and temperature will be how much, temperature T1 की वैल्यू कितनी है, 300 Kelvin, right? So just calculate this, we will get 2.49 kilojoule, okay, this will be W12, okay, so we have to calculate this W23 also, W23, let's try to focus on this। Okay, let's try to understand this. A reversible cycle using an ideal gas बोल रहा है तो clear है, we have to use PV equals to MRT or N R bar T, as the working substance consists of an isentropic compression from initial temperature T1 पता है, to T2 बोल रहा है, और 55555 केल्विन टू 55 केल्विन। अच्छा, दिमाग में रखिएगा, ऐसे ऐसे भाई, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोल रहा है ना, तो आइसेंट्रोपिक टेक इट, अभी एडियाबेटिक ही लीजिएगा इसको, आइसेंट्रोपिक एडियाबेटिक टेक इट सिमिलर। एडियाबेटिक है तो अपने पास दो ऑप्शन, एडियाबेटिक या तो ऐसा होगा या तो ऊपर होगा। कंप्रेशन बोल रहा है तो जस्ट दिमाग में अभी ऐसा बनाना है, ओके। T2 की वैल्यू 55555 केल्विन टू 55 केल्विन, ओके। ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 55 के, सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। अच्छा, अब फिर कांस्टेंट वॉल्यूम जानना है इसको, ओके, ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेट्स सी। 552 T3 835 केल्विन। अच्छा यार, अगर ये नीचे जाएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, है ना, सो किधर जाना चाहिए, इट शुड गो अपवर्ड, बैक हो भाई, बैक, ओप्स। T3 की वैल्यू कितनी होगी, 835, ओके, तो ये ऊपर जाएगा, इट विल गो अप साइड, ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इधर नहीं आएगा। ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन 835 तक चला गया, दिस इज़ 0.3। अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन टू T2, देखो ये T2 है, दिस इज़ व्हाट 1, दिस इज़ 2, और फिर से यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, T2 यहाँ तक आएगा, ये T2 फ्रॉम एक्सपेंशन टू 55 के, फिर ये T2 पे आ गया, T2 ऑलरेडी अपन जानते हैं 55 के। अ कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन फ्रॉम 55 के टू 835, ओके, तो यहाँ से ये दिस इज़ 0.3, 0.4, 0.5 कांस्टेंट प्रेशर होगा, या तो इधर जाएगा या इधर पीछे आएगा, ओके। कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन बोल रहा है तो यार 4 to 5 राइट में जाएगा, एक्सपेंशन टू 835 केल्विन, सो T5 का टेम्परेचर कितना होगा यार, इट विल बी हाउ मच, 835 केल्विन, फॉलोड बाई अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस टू इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ से ये कांस्टेंट वॉल्यूम में आ जाएगा टू इनिशियल टेम्परेचर, सो आई थिंक दिस इज़ द मोटी डायग्राम, ये है इनिशियल टेम्परेचर। ड्रॉ द साइकिल ऑन PV एंड TS डायग्राम। TS अभी अपन नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे,
आगे का इसको बनाएंगे। डिटरमाइन द इनिशियल टेम्परेचर, ओके, तो हमें T1 पता करना है एंड आल्सो कंप्यूट द वर्क डन इन kg, वर्क डन निकालना है हमें। वर्क डन वी हैव टू कैलकुलेट किलो जूल पर kg एंड वी हैव टू टेक आर की वैल्यू दे रखी है, ओके फाइन। गामा की वैल्यू लेनी है 1.4। ओके सो गाइस टेक सम रेस्ट एंड ट्राई टू थिंक कि अभी इसमें क्या क्या करना है, राइट। सो फर्स्ट हमें निकालना है इसमें T1 की वैल्यू। T1 की वैल्यू अच्छा यहाँ पे है। सो गाइस लेट्स मेक दिस PV कर्व प्रॉपरली। ये तो मैं जस्ट दिमाग में बना रहा था, लेट्स ट्राई टू मेक इट प्रॉपरली। सो कैसा बनेगा प्रोसेस, इट विल बी लाइक P, दिस इज V, दिस इज P। सो 1 से 2 में, 1 से 2 it is going like isentropic compression, फिर 2 to 3, 2 to 3 is what isochoric expansion, फिर this is 1, this is 1, this is 2, 1 2, this is 3, ओके। फिर 3 से 4, 3 से 4 सॉरी 3 से 4 T4 एंड T2 का टेम्परेचर यहाँ पे सेम रहेगा। लेट्स सी, और कमिंग टू 4 4 5, लेट्स सी या गाइस, यहाँ पे 2 3 4 एंड अगेन फ्रॉम 4 to 1 इसका क्या है, आइसोबेरिक एक्सपेंशन। ओके सो हियर 4 to 5 ये कांस्टेंट प्रेशर पे ये आगे बढ़ेगा। देन 5 to 1, 5 to 1 इट विल, इसका कैसा रहेगा प्रोसेस, इट विल बी व्हाट आइसोकोरिक, इट विल बी व्हाट आइसोकोरिक। अच्छा अगर मैं इसको आई कैन राइट हियर, राइट, तो मुझे क्या क्या करना है यार इसमें, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। सो गैस टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल वर्क डन विल बी हाउ मच वर्क, दिस विल बी W12, 1 से 2 में कितना आ रहा है, ओके। फिर W23, 2 से 3 प्रोसेस में कितना हो रहा है, W34 प्लस W45 प्लस W51। सो दीज आर द टोटल वर्क डन, ओके। सो लेट्स ट्राई टू सी कि ये दिस प्रोसेस इज़ व्हाट 1 से 2, दिस इज़ व्हाट आइडियल गैस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक वी कैन टेक इट एज अ एडियाबेटिक, इट विल फॉलो PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका वर्क डन विल बी व्हाट P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। W23 कितना हो जाएगा, आइसोकोरिक है, सो वर्क डन 0। W324 दिस इज ऑल्सो व्हाट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक इट विल फॉलो PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। सो इट विल बी व्हाट W324 it will be what P2 V2 the P3 V3 minus P4 V4 upon गामा माइनस 1 प्लस W425 कितना हो जाएगा यार, इट इज़ व्हाट, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है ये। सो इट विल बी प्रेशर विल बी कांस्टेंट P4 इंटू व्हाट V5 माइनस V4 और प्लस W521 इट विल बिकम 0। तो हमें P1 V1 की वैल्यू पता है क्या, P1 पता है क्या, P1 नहीं पता है, V1 पता है क्या, V1 की वैल्यू नहीं पता है। सो P1 V1 नहीं पता है, अच्छा ओके। सो फ्रॉम हियर कैन वी राइट दैट P1 V1 इक्वल्स टू हाउ मच,
that wait, it will be what, r t1 minus r t2 upon gamma minus 1. Guys, you can see here it is unit is given kg, kilojoule per kg, so it is already unit is 1 kg plus 0 plus r t3 minus t4 upon gamma minus 1 प्लस P4 अच्छा, यहाँ पे अगर मैं V5 and V4 here pressure is constant, so can we write here V4 equals to R T की पावर T5 माइनस what T4 प्लस 0 है ना, तो टोटल ये हो जाएगा. तो आई थिंक हमें T2 T3 T5 दिया है, जस्ट वी हैव टू नो व्हाट इज T1 वैल्यू. तो नाउ मेन फंडा इज़ हियर कि हमें T1 कैसे निकालना है. ओके, थोड़ा जुगाड़ पानी करना रहेगा इसमें. लेट्स सी. ओके, so this is adiabatic process. From adiabatic process we have to calculate the value of T1. ओके, V2 भी नहीं दिया है. ओके गाइज, एक यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है, दिस इज़ व्हाट V2, दिस इज़ व्हाट V1. सो कैन वी राइट हियर दैट V2 इक्वल्स टू व्हाट V3 है ना. V3 इक्वल है. एंड वी कैन आल्सो राइट हियर V1 इक्वल्स टू व्हाट V5. okay, so now let's divide these two equation. Divide these two. V2 by V1 will be how much? V3 by V5, and if we multiply by V4 from top and bottom, right, so can we write this as like V3 by V4 into V4 इधर आ जाएगा, देन V4 by V5. सो यार, इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ. लेट्स सो कैन वी राइट यूजिंग PV की पावर गामा, वी कैन राइट V2 by V1 एज T2 by T1 की पावर 1 upon gamma minus 1, and it will become equals to V3 by V4. तो हमें T4 पता है, T3 पता है. it will be equal to 1 upon gamma minus 1 and gamma minus 1 into V4 upon V5. This is what isobaric process, right? So it will be directly T4 upon T5, राइट. सो यहाँ पे T2 पता है, T3 पता है, T4 T5 सब पता है, राइट. सो गाइस, कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ T1 फ्रॉम हियर? T1 की वैल्यू कैन वी गेट फ्रॉम हियर? यस, इफ़ यू डू द कैलकुलेशन वी विल गेट T1 वैल्यू 313.28 केल्विन. अच्छा, अगर T1 की वैल्यू आप पता है यहाँ पे, सो डायरेक्टली जस्ट यू हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर. T1 की रख दोगे, ऑलरेडी सब T2 T3 T4 सब की वैल्यू पता है. So we will get the final answer as how much? We will get 107.83. This calculation you have to do by yourself, right? So answer will be in kg, kilojoule per kg, because R value is in kilojoule per kg. I hope यहाँ तक clear है. So let's see last question. Okay, 1 mole of a ideal gas, सिंपल आपको जस्ट लिखना है. 1 mole of ideal gas means N equals to 1 passes through a process in which pressure and volume follow the relation. This P0 V0 the constant, derive an expression in terms of P0 V0 from the change in the temperature of the gas if volume changes from V0 to 2V0. okay, 2V0 चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस. ओके, तो मुझे चेंज इन टेम्परेचर निकालना है. अगर
वॉल्यूम चेंज कर रहा है। ओके ओके, तो मुझे एक V0 पे टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है और 2V0 पे टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, दिस इज़ फॉर आइडियल गैस। तो यार मुझे ये पता है कि यहाँ पे PV इक्वल्स टू ये MRT लगेगा। 1 मोल है तो NRT N R बार T। सो इट विल बी व्हाट, PV इक्वल्स टू R बार T। ओके, तो just put the so we have this relation P0 1 minus half V0 upon V की power 2. So put the value of P here in terms of this upon ये क्या हो जाएगा V, and this will be what, P0 into 1 minus half V0 upon V की power 2. Okay, so this is the relation between T and P. अब इसमें T1 की वैल्यू पूछ रहा है। now it is asking T at V0. so हम लोग क्या करेंगे यार, यहाँ पे जस्ट इसको उधर से मल्टीप्लाई करिए। सो इट विल बी व्हाट, P0 V0 अपॉन R. ओके, R बार। so it will be how much, 1 minus half V0 upon V0 into square. so it will be how much, P0 V0 upon R bar into ये कट जाएगा तो हाफ बचेगा। so we will get half. so it will be what, P0 V0 upon 2 R bar. now we have to calculate T value at what, 2V0. तो यार ये कितना हो जाएगा, P0, अच्छा अब V की वैल्यू रखनी है अपन को 2V0. सो दिस विल बी 2V0 अपॉन R बार इंटू 1 माइनस हाफ दिस इज़ V0 अपॉन व्हाट, 2V0 स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, P0 V0 अपॉन R बार ओके 2, और इसमें अंदर 1 माइनस हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, राइट. सो जस्ट डू दिस कैलकुलेशन. तो 4 दूनी 8, 7 ओके. सो इट विल बी 7 P0 V0 अपॉन 4 R bar. okay, so what it is asking delta t की क्या होगा, 2V0 minus T V0. so the answer will be how much, do this calculation, it will be what, 5/4 into P0 V0 upon what, R bar. okay, so this is the final answer. okay, good. so okay, I think completed guys. so this is all for thermodynamic work done. so I hope यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे. if you have any kind of doubt in any question, feel free to contact me, okay, in the class or any other time. you can text me or message me. okay, thank you so much guys.